Al Haq channel, subscribe now. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان الشهر ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، برادران اسلام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں سے نکال کر اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے کہ یہ بات میں ہر ہفتہ کہتا ہوں کہ آج کے دن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاروباروں میں ملوث ہیں، جو کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر تک پہنچنے کی توفیق مرحمت نہیں فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے دلوں کے اندر توفیق ڈالتا ہے وہی بندہ اللہ کے گھر تک پہنچتا ہے. جو شخص اللہ کے گھر تک پہنچتا ہے تو یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے راضی ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس متبرک اور بابرکت دن کے اندر بھی اپنے رب کے گھر میں آنے سے محروم رہ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے قیمتی وقت کو نکال کر، بلکہ اپنی تمام ضروریات کو ترک کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے آئے ہیں. یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ سب سے بڑی آج سعادت مندی کی بات ہے. عزیزان گرامی، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات انسانوں کو پیدا کیا. پھر انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اپنے بندوں کی تمام ضروریات کو پیدا کیا، تمام ضروریات کو مہیا کیا کہ بندہ، میرا بندہ دنیا میں جا کر کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بلکہ اللہ رب العزت ایک ایک نعمت کو بندے کو نوازا ہے. انہیں نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وقت کی نعمت سے نوازا ہے. اس لیے کہ آدمی جب کسی کام کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر یہ خاکہ بناتا ہے کہ میں فلاں سال فلاں کام کو مکمل کر لوں گا،
میں فلاں مہینہ فلاں کام کو مکمل کر لوں گا اور فلاں دن فلاں کام کو مکمل کروں گا، لیکن وہ تو اسی وقت کرے گا جب اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ فلاں سال ہے، یہ فلاں مہینہ ہے، یہ فلاں دن ہے۔ اگر نہ اس کو دن کے بارے میں معلوم، نہ مہینے کے بھی معلوم، نہ سال کے بارے میں معلوم، تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ میرا کام کب مکمل ہو رہا ہے اور میرا کام کب سے شروع ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ایک ایک چیز کو کرنے کے بارے میں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے وقت کو بھی بنایا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں نماز پڑھنی ہے، فلاں وقت میں فلاں نماز پڑھنی ہے۔ ہم ظہر کے وقت عصر کی نماز کو نہیں پڑھ سکتے اور عصر کے وقت ظہر کی نماز کو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جب ہم وقت کے اندر نمازیں پڑھیں گے تب ہماری نماز قابل قبول ہوگی، ہمارے ذمے سے وہ فرضیت ادا ہوگی۔ نہیں تو اگر ہم ایک وقت کی نماز کو دوسرے وقت کی نماز کے اندر ہم پڑھیں گے تو وہ نماز ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہمارے ذمے سے وہ نماز ختم ہوگی۔ میرے دوستو، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ رجب کے مہینے کے بعد آتا ہے، اور یہ مہینہ جو ہے یہ اسلامی سال کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے، جس کو ہم اور آپ شعبان کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ مہینہ رمضان سے پہلے اور رجب کے بعد آتا ہے، اور رمضان کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہے، جو تراویح پڑھی جاتی ہے اور دیگر عبادتیں تو کی جاتی ہے، اس کی تیاری کا موقع شعبان کے اندر ہمیں مل جاتا ہے کہ اگر تم شعبان کے اندر اچھی طریقے سے نمازیں پڑھو گے، ہر ایک عبادت کا اہتمام کرو گے، تو رمضان کا مہینہ جو مبارک مہینہ ہے جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، تاکہ ہم اس مہینے کو اچھے طریقے سے گزار سکیں، رب کو راضی کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 مہینے ہیں، اس لیے کہ اسلامی سال کا آغاز جو ہوتا ہے وہ محرم سے ہوتا ہے اور ذی الحجہ میں جا کر کے ختم ہو جاتا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی محرم کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، رجب کا مہینہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے اور رمضان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے اور رجب کے مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ رجب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ وہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ وہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، محرم ہے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، رجب کا مہینہ ہے، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ رمضان کے اندر جو عبادتیں کی جاتی ہے اس کی تیاری کا موقع ہمیں مل جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں ہر ایک مسلمان واقف ہے، ہر ایک آدمی انتظار کرتا ہے کہ کب رمضان کا مہینہ آئے، کب رمضان کا مہینہ آئے۔ اس لیے کہ اگر کسی مسلمان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اگرچہ وہ اور دوسری عبادتیں نہیں کرتا ہے، لیکن رمضان کی فضیلت اس کے دل کے اندر ضرور ہے، رمضان کے مہینے کی فضیلت اس کے دلوں کے اندر ضرور ہے، اور وہ اس سے مالا مال ہونا چاہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ کب آئے اور اس کی فضیلت سے میں کب مالا مال ہو جاؤں۔ اس لیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور نیکیوں کے برسات ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے انتظار کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور رجب اور شعبان کے مہینوں کے اندر خیر
तबारक व तआला से। और दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि शाबान व शहरी व रमजान शहरुल्लाह, कि शाबान जो है ये मेरा महीना है और रमजान जो है ये अल्लाह का महीना है। अब जरा सोचिए, जिस चीज की निस्बत और जिस महीने की निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ कर ले तो उसके मर्तबे और मकाम का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। फरमाया कि शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। इसीलिए कहा जाता है कि रजब का जो महीना है वो हवाओं के आने का महीना है, और शाबान का जो महीना है वो बादलों के आने का महीना है, और रमजान का जो महीना है वो बारिश का महीना है। फिर किसी ने कहा है कि रजब का जो महीना है वो खेती में बीज डालने का महीना है, और शाबान का जो महीना है वो खेती में पानी डालने का महीना है, और रमजान का जो महीना है वो खेती को काटने का महीना है। अब जरा सोचिए, इन तीनों महीनों की फजीलत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमजाना, कि अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला हमें रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और रमजान के महीने तक हमें पहुंचा। इसलिए कि जब हमारे घरों के अंदर कोई मेहमान आते हैं तो हम उसकी तैयारी करते हैं, खाने पीने वगैरह के सामान हम तैयार करके रखते हैं, ताकि जैसे ही हमारे घरों के अंदर मेहमान आए हम उसकी अच्छी तरीके से मेजबानी कर सके। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो शाबान का महीना है ये रमजान के इस्तकबाल का महीना है। अगर हम और आप इस शाबान के महीने के अंदर अच्छी तरीके से रमजान के आने की इस्तकबाल करेंगे तो हम रमजान की फजीलत से जरूर मालामाल हो जाएंगे। इसलिए कि हमारे पास 3 दिन है। कितने दिन है? 3 दिन है। एक दिन तो वो है जो हमारे दरमियान से गुजर गया, एक दिन वो है जो हमारे दरमियान से गुजर गया, और एक दिन वो है जिस दिन के अंदर हम और आप मौजूद है, यानी मौजूदा दिन, और एक वो दिन है जो आने वाला दिन है। हमने गुजरे हुए दिन के अंदर जो दिन हमारे दरमियान से गुजर गया उसके अंदर जो हमने अच्छे अमाल किए, जो हमने बुरे अमाल किए, अल्लाह तबारक व तआला के नाम फरिश्ते हमारे नामा अमाल में उन अमाल को लिख लिए हैं, महफूज कर रखे हैं। और जो मौजूदा दिन है वो हमारे हाथ में है। अगर हम चाहे तो इस दिन के अंदर अच्छे अमाल भी कर सकते हैं और बुरे अमाल करके अपने आखिरत को बर्बाद भी कर सकते हैं। और जो आने वाला दिन है, आइंदा आने वाला जो दिन है, वो उस दिन के बारे में हमें पता नहीं। इसलिए कि हमारी मौत कब आ जाए, मौत का फरिश्ता हमारे सामने कब आ जाए, कल के आने के दिन के बारे में हमारे पास कोई कुछ पता नहीं कि कल हम आइंदा कल हम अपने आप को मौजूद पाएंगे या नहीं पाएंगे। इसी तरीके से ये जो 3 महीने हैं, यानी रजब का महीना है और शाबान का महीना है और रमजान का महीना है, ठीक इसी तरह 3 दिनों की तरह है। यानी जो रजब का महीना था वो हमारे दरमियान से गुजर गया, हमने जो रजब के महीने के अंदर जो इबादतें की, हमने रजब के महीने के अंदर जो अच्छे अमाल किए, अगर हमने अच्छा अमाल किए, अगर हमने नेक अमाल किए तो हमें अपने रब का शुक्रिया अदा करनी चाहिए। और अगर हमने बुरे अमाल किए, अगर हमने गलत काम किए, हमने दूसरों को तकलीफ पहुंचाया, हमने गलत बातें की, हमने दूसरों को बुरी नजर से देखा, हमने बदनिगाही की, तो अपने रब से उन गुनाहों के बारे में मग़फ़िरत करनी चाहिए। अपने रब के सामने हाथ फैलानी चाहिए कि अल्लाह जो गुज़िश्ता महीना जो गुजर गया, रजब का महीना गुजर गया, मैंने जो नेक अमाल किए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, और ये जो बुरा मैंने किए हैं उससे मैं आपसे पनाह मांगता हूँ, मग़फ़िरत चाहता हूँ। और जो शाबान का महीना है वो हमारे हाथ में है। इसलिए कि मौजूदा दिन के बारे में फरमाया कि मौजूदा दिन वो हमारे हाथ में है। इसी तरीके से शाबान का जो महीना है, जो महीना जिस महीने के दरमियान से आज हम गुजर रहे हैं, जो आज मौजूद है, ये महीना शाबान का महीना है। और ये महीना हमारे कब्जे में है, हमारे दरमियान है। हम और आप इस
महीने के अंदर अच्छे अमाल भी कर सकते हैं और बुरे अमाल भी कर सकते हैं। अगर हमने अच्छे अमाल किए तो हम अपने रब को राज़ी कर सकते हैं, नेक अमाल करके, नमाज़ें पढ़ के, इबादतें करके अपने रब को राज़ी कर सकते हैं, और बुरे अमाल भी कर सकते हैं। बुरे अमाल करके हम अपने आखिरत को बर्बाद भी कर सकते हैं और अपने आप को जहन्नम का ठिकाना भी बना सकते हैं। और जो दिन आने वाला है, जो महीना आने वाला है, यानी रमजान का महीना जो इस महीने के बाद आने वाला है, उसके बारे में हमें पता नहीं कि हम उस महीने तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं। कहीं तो ऐसा ना हो कि रमजान से आने से पहले हमारी मौत आ जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की फजीलत के बारे में इरशाद फरमाया है कि इस महीने के अंदर एक रात ऐसी है जिस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बिला किसी तादाद के, बगैर किसी गिनती के, अल्लाह तबारक व तआला बंदों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करता है। और उस रात के इंतजार में हम और आप मौजूद हैं। उसी रात का हम इंतजार कर रहे हैं जिस रात को हम शबे बारात कहते हैं। हम शबे बारात कहते हैं। अब जरा सोचिए कि शबे बारात कहते हैं किसको, उसका मतलब क्या, इसका माना किया है। सब कहते हैं रात को, और बारात कहते हैं बरी होने को। बारात कहते हैं बरी होने को, छुटकारा हासिल करने को। इसीलिए इस रात को शबे मग़फ़िरत भी कहा जाता है और शबे बारात भी कहा जाता है, और जहन्नम से नजात पाने वाले रात भी कहा जाता है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर अपने बंदों की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाते हैं और हाथ फैला कर कहते हैं, है कोई अपने गुनाहों से बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसकी बख्शिश करूं? है कोई रिस्क को तलब करने वाला, मैं उसको रिस्क अता करूं? है कोई अपने मुसीबत को दूर, अपने मुसीबत ज़दा कि मैं उसके मुसीबत को दूर करूं? अल्लाह तबारक व तआला इससे कि शबे बारात जो शुरू होता है वो सूरज के गुरूब होने से लेकर के सूरज के निकलने तक वक्त रहता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और हाथ फैला कर अपने बंदों को मुखातब करके कहता है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसकी बख्शिश करूं? है कोई रिस्क का तलब करने वाला, मैं उसको रिस्क अता करूं? है कोई मुसीबत ज़दा, मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं? इसलिए कि वो रात बहुत ही बरकत और अज़मत वाली रात है। उस रात के अंदर क़याम करनी चाहिए। उस रात के अंदर जितनी आपसे हो सके अल्लाह आपको जितनी तौफीक दे, इतनी तौफीक के साथ आप रातों को जागे। उस रात के अंदर जागकर आप नमाज़ें पढ़े, अपने गुनाहों से 2 बार इस्तिग़फ़ार करे, अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे, पूरे मुस्लिमीन के लिए, पूरे मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करे। इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने वालिदों की बख्शिश के लिए दुआ करें, तमाम मुसलमानों की बख्शिश के लिए दुआ करें। इसलिए कि उस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के सामने बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। हम जो अमाल करते हैं, अगर हम नेक अमाल करते हैं या बुरे अमाल करते हैं, तो उस रात के अंदर बंदों के अमाल रब के सामने पेश करते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फरमाते हैं कि एक सहाबी जिनका नाम हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अलावा जो सबसे ज्यादा जिस महीने के अंदर रोजा रखा करते थे वो शाबान का महीना थे। फिर हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है कि आप रमजान के बाद जिस महीने के अंदर सबसे ज्यादा रोजा रखते हैं, रोजा रखने की वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस रात के अंदर, उस महीने के अंदर एक रात ऐसी आती है जिसको शबे बारात कहा जाता है। उस रात के अंदर बंदों के अमाल रब के सामने पेश होते हैं। और मैं चाहता हूं और मैं इस बात को पसंद करता हूं कि जब मेरा अमाल मेरे माबूद के सामने पेश किया जाए तो मैं रोजे की हालत में हूं।
रोजे की हालत में हूँ। इसीलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आपके अंदर ताकत और कुव्वत है, अगर आपके पास इतनी इस्तिताअत है, तो आप शबे बरात के बाद यानी रात गुजारने के बाद जो दिन आएगा उस दिन के अंदर आप रोजे का इत्मीनान करें। ये कोई जरूरी नहीं है बल्कि मुस्तहब है, ना वाजिब है। अगर आपके अंदर ताकत और कुव्वत है, अगर आप रख सकते हैं तो रोजा रखें, इससे कि इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। और एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी और फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के अंदर 2 दिन रोजा रखा करते थे। कितने दिन? 2 दिन। वो पीर और जुमेरात के दिन, यानी सोम और पीर के दिन, पीर और जुमेरात के दिन रोजा रखा करते थे। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सहाबी ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े एहतिमाम के साथ इन 2 दिनों को रोजा रखा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि मैं इस बात को पसंद करता हूं कि हर पीर, हर सोम और जुमेरात के दिन बंदे के अमाल रब के सामने पेश किया जाता है और मेरे अमाल इस हालत में रब के सामने पेश किया जाए कि मैं रोजे की हालत में हूं। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि पीर और जुमेरात के दिन रोजे रखने का भी एहतिमाम करें। ये कोई जरूरी नहीं, अगर आपके अंदर इस्तिताअत है, ताकत है तो आप रखें। इससे कि उस दिन हमारे जो अमाल होते हैं रब के सामने पेश किया जाता है, और हमारे अमाल जब रब के सामने पेश किया जाए तो हम उस वक्त ऐसे हो कि हम रोजे की हालत में हो। इसीलिए जो हमारे दरमियान जो महीना है, ये शाबान का जो महीना है, ये बहुत ही मुतबर्रक और फजीलत वाला महीना है। बल्कि उलमा ने कहा है कि शाबान जो है ये 5 लफ्ज से बना है। शीन, पहला लफ्ज क्या? शीन। शीन से मुराद शराफत मुराद है। और दूसरा लफ्ज है आइन। आइन से मुराद उलूवे मर्तबा मुराद है। और उसके बाद है बा। बा से मुराद पीर यानी नेकी मुराद है। और उसके बाद अलिफ है। अलिफ से मुराद है उल्फत यानी अल्लाह की मोहब्बत मुराद है। और उसके बाद नून है। नून से मुराद नूर यानी नूर हिदायत है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिन बंदों को ये तमाम 5 चीजें नसीब हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जे को भी बुलंद फरमाते हैं, उसको नेकी की तौफीक भी अता फरमाते हैं, और उसको बुलंद मकाम तक भी पहुंचाता है। इससे कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको मर्तबा अता करे उसको कोई गिरा नहीं सकता है। कुरान कहता है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको रब इज्जत देता है उसको कोई जिल्लत नहीं दे सकता है। इसीलिए उलमा ने कहा शाबान ये 5 लफ्जों से बना है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इस महीने की कदर करें और इस महीने के एक एक लम्हे को हम नेकी करते रहे। अगर हम चल रहे हैं तो उसके अंदर भी हम तस्बीहात पढ़ें। हम खा रहे हैं, खाने के जो दुआ वगैरह है अगर हम वो पढ़ेंगे उससे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह बयानी होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा होगी। इससे कि इस्लाम तो एक ऐसा दीन है, एक ऐसा मजहब है कि शरीयत ने एक एक चीज को करने के बारे में जो कहा है हर एक चीज का तरीका बताया है। अगर आप मस्जिद के अंदर आ रहे हैं तो आने के लिए सबसे पहले आप कौन से पैर को दाखिल करेंगे, उसकी दुआ क्या है वो दुआ पढ़ेंगे। फिर जब निकलेंगे मस्जिद से तो फिर मस्जिद से निकलते वक्त आप सबसे पहले किस पैर को निकालेंगे। बल्कि यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चप्पल पहनने के तरीके भी बताए कि अगर आप चप्पल पहन रहे हैं तो सबसे पहले आप कौन से पैर के चप्पल सबसे पहने, अगर आप उतार रहे हैं तो सबसे पहले कौन से पैर के चप्पल को उतारें। बल्कि एक एक चीज को इस्लाम ने बताया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। लेकिन कमी हमारी है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने से परहेज करते हैं। खुदा की कसम कामयाबी उसी जिंदगी में है जिसकी जिंदगी में रसूलुल्लाह की सुन्नतें हो, जिसकी जिंदगी में नबी का तरीका हो। अगर हमारी जिंदगी के अंदर नबी की सुन्नत नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर नबी का तरीका नहीं है तो हमारी जिंदगी यूं ही बेकार और बर्बाद है, कल क़यामत के दिन कोई काम आने वाली नहीं है।
اسی لیے جب تک اللہ نے ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے ہم اپنے رب کی عبادت میں گزارے، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شعبان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شب برات نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زیادہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔